اس ہاؤس میں کسی ایک جماعت کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے. پاکستان کے عوام نے ایسا فیصلہ سنایا ہے جہاں آپ کو مجبوراً مل بیٹھ کے فیصلے کرنے پڑیں گے. کوئی ایک جماعت فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ کو اپنے تمام نیشنل اسمبلی کے ریزرو سیٹس مل بھی جائے, آپ یہ کرسی نہیں سنبھال سکتے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹس کے بغیر. پاکستان کے عوام ہمیں یہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہمارے لڑائیوں سے وہ تھک چکے ہیں. اگر وہ چاہتے وہ کسی ایک جماعت کو اکثریت دلوا سکتے تھے. چلے اب نہیں دیا تو اگر دیتے تو حکومت ان کا ہوتا. نو کراک دستی صاحب. عوام نے نہیں دی ان کو میجورٹی, اور ان کا حکومت یا کوئی پالیسی اس ہاؤس سے تب نہیں بنتا جب تک ہم آپس میں بات چیت نہ کریں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ نیشنل چارٹر آف ریکنسیلیشن ہو یا چارٹر آف ڈیموکریسی, چارٹر آف اکانومی ہو, ہمیں آپس میں بات کرنا چاہیے. اگر آپ واقعی الیکشن جیت چکے ہو تو آپ جانتے ہو کہ پاکستان کے عوام مہنگائی کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں. اگر آپ کو ووٹ دیے ہیں تو صرف اس لیے نہیں دیے ہیں کہ آپ یہاں آ کے گالی دے. اگر آپ کو ووٹ ملا ہے تو صرف اس لیے نہیں دیا ہے کہ یہاں آ کے آپ شور شرابہ کریں. اگر پاکستان کے عوام نے آپ کو ووٹ دیا یا مجھے ووٹ دیا یا ان کو ووٹ دیا تو صرف اس لیے کہ ہم ان کو اس معاشی بحران سے بچائیں. میں 6 سال پہلے 5 سال پہلے 10 kilograms of wheat flour would cost less than 400 rupees. Today it costs more than 1,400. Similarly, prices of milk, edible oil, dal have all increased by 113%, 217%, 353% respectively. اور یہ تمام, اس لیے میرے عوامی معاشی معاہدہ جو میں نے الیکشن میں استعمال کیا اس میں سے یہ اب سب تمام پرانے نمبرز ہوں گے, اس سے بھی زیادہ ہوگا. 8 سال 9 سال پہلے a poor family with a joint income of 35,000 rupees could buy sufficient amounts of atta, edible oil, milk and other food items to provide nutritious food to their families, afford a 2-room house and put their children through school and have enough savings for either a medical emergency or recreation. آج کا مطلب 1 سال پہلے جب میں نے یہ ڈاکیومنٹ لکھا تھا, the same family would need a joint income of 70,000 rupees to fulfill those needs. پاکستان کے عوام جائے تو کہاں جائے جناب اسپیکر؟ آپ بجلی کے بل بیچتے رہتے ہیں, ان کو کھانا پینے کی اشیاء کے بندوبست کرنا پڑتا ہے, پرائسز میں اضافہ ہوتے جا رہے ہیں, ان کے آمدنی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. ہم ایسے معاشی بحران میں پہنچ چکے ہیں جو کہ کچھ بیرونی معاملات کی وجہ سے, جو کچھ پوری دنیا میں جو معاشی حالات چل رہے ہیں ان کی وجہ سے, اور کچھ اس لیے کہ اس ملک میں ہم نے ایسے کچھ فیصلے لیے ہیں جس سے آج ہمارا پاکستان کے عوام اور پورا معیشت مشکل میں ہے. میرا امید ہے اگر اس ہاؤس میں تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھتے ہیں, معیشت پہ بات کرتے ہیں, اپنے انپٹ دیتے ہیں, تو جو بھی پالیسی وزیر اعظم صاحب سامنے لے کر آئے گا وہ آپ سب صاحبان کا اگر انپٹ اس میں ہوگا تو وہ بہتر پالیسی ہوگا. اگر آپ انپٹ نہیں دیتے ہیں اور آپ کہتے ہو کہ میں یہ وزیر اعظم نہیں مانتا ہوں تو میں نہیں بات کروں گا, تو پھر جو بھی شہباز شریف صاحب کا پالیسی ہوگا آپ اس پہ تنقید تو نہیں کر سکیں گے. شہباز شریف صاحب نے آپ کو موقع دیا, ہم سب آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئے مل بیٹھ کے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو اس
मुआशी मुश्किल से निकाले। मेरे एडवाइस आपको यही होगा कि आप प्लीज इस बात पे हमारे साथ थे। जनाब स्पीकर, पीएम साहब ने तो बहुत बातें की कल की तकरीर में, और मैं उस पर आना चाह रहा हूं। जो कायदे इस पे इख्तलाफ ने कहा कि हमारा कोई नजरिया है, उस पर मैं इख्तलाफ करता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा नजरिया रहा है हम हर इलेक्शन अपने मंशूर के मुताबिक लड़ते हैं, और इस इलेक्शन में भी हम अपने मंशूर के मुताबिक लड़े हैं। और आई कैन प्रॉमिस यू कि उमर अयूब साहब को अपना मंशूर के बारे में इतना नहीं पता होगा जितना मुझे अपने मंशूर के बारे में पता है। अब मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि इतना लंबा इलेक्शन कैंपेन के बाद तकरीबन तमाम सियासी जमातें अगर इस पे सारे पॉइंट्स पे में नहीं तो 80% जो अवामी मुआशे मुआहदे में पॉइंट्स थे इस पे आ चुके हैं। पंजाब के नुमाइंदे हो, वफाक के नुमाइंदे हो, अपोजिशन के नुमाइंदे हो, उनके अपने तकरीरों में, उनके अपने पॉलिसी स्टेटमेंट्स में ऐसे बातें कर रहे हैं जिससे मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। इसलिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि शायद ये मुमकिन हो कि इस डॉक्यूमेंट का कुछ जो नुक्ते हैं उस पर अमल दरामद कर सकेंगे। कल शहबाज शरीफ साहब अपनी तकरीर में पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात के बारे में बात कर रहा था, और जहां सही बातें की गई, एक तो ऐसे बातें हैं जिस पे मैं इजाफा करना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात है उनके बारे में जो बात किया जाता है, दो ऐसे पहलू हैं कि अगर हम इनको एड्रेस करें तो वो फिस्कल शॉर्टफॉल जो है हम काफ़ी हद तक एक फिस्कल स्पेस बना सकते हैं। एक बात किया जा रहा था कि एनएफसी अवार्ड के बाद, सूबों को अपना पैसे मिलने के बाद वफाकी हुकूमत तो कर्ज पे चलता। ये सही तो होगा, मगर ये सिर्फ इसलिए नहीं कि एनएफसी अवार्ड के मुताबिक वो सूबे के अपने हक दे रहे हैं, वो इसलिए कि 18वीं तरमीम के मुताबिक जो स्टेप्स वफाकी हुकूमत को लेने चाहिए थे वो ना मियाँ साहब का 2013 का 2018 तक का हुकूमत में हुआ, और ना 2018 से लेके खान साहब की हुकूमत में ये हुआ कि जो 18वीं तरमीम के मुताबिक वो वफाकी वजारतें जो डिवॉल्व होना चाहिए थे 2015 तक वो डिवॉल्व नहीं हुए, और अब डबलिंग चल रहा है। या वफाक में वो वजारतें हैं और होना तो वो सबाए हुकूमत में होने चाहिए, वो वफाक में जो ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो हमें भी कहते हैं, वो इनको भी कहते हैं। इन्होंने खान साहब को भी ये बताया था कि हम तो दिवालिया हो चुके हैं सूबे की वजह से, इन्होंने तो सारा पैसा ले लिया है। हकीकत यह है जनाब स्पीकर के 18 वजारतें ऐसे हैं जिनको डिसॉल्व होना चाहिए थे 2015 में। इनका सालाना खर्चा आपको पता कितना है? सालाना 328 बिलियन रुपीस। अगर ये 2015 में डिवॉल्व होते तो आई थिंक 800 बिलियन का आप जिक्र कर रहे थे कल वजीर आजम साहब PIA के हवाले से ना। तो अगर 2015 में हम ये डिवॉल्व कर लेते तो वो इशू इसी पैसा के साथ हम हल कर सकते थे। आज भी आपका हुकूमत बनने जा रहा है, उस हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा नहीं होंगे। अगर हम होते तो 9-10 वजारतें तो हम ले लेते। तो मैं आप आ जाए तो हम भी आ जाएंगे भाई। तो जमशेद दस्ती साहब, ये कांस्टेंट कमेंट्री अच्छा नहीं लगता ना। यू आर सीनियर पार्लियामेंटेरियन, करने दें बात, तो आपकी बारी आएगी, बात कीजिए। थैंक यू जनाब स्पीकर। तो हमें जब भी मैं ये इशू उठाता था इलेक्शन कैंपेन के दौरान, तो मुझे कहा जाता था कि आप तो कोalition गवर्नमेंट बनाएंगे, आपको तो आप ये कैसे कदम उठाएंगे। तो अब मेरे ख्याल में ये मौका है कि शहबाज शरीफ साहब ये इनकलाबी स्टेप ले सकता है कि कुछ उन वजारतें में अगर आप एकदम से ख़त्म कर सकते हैं तो ज़बरदस्त, अगर एकदम से नहीं तो एक ट्रांजिशन तो आप कर सकते हैं 1-2 साल में उनको डिवॉल्व करके। जो थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन वफाक को वैसे ही करना चाहिए वो आप ये
IOC क्या है, वजारत इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, वो वजारत वो काम कर सकता है। दूसरा जो मैं बहुत खुश हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने जब कल कहा कि जो सब्सिडीज फर्टिलाइजर कंपनीज को दिए जाते हैं वो हम डायरेक्टली किसानों को देंगे, ये हमारा 10 नुकाती एजेंडा में मौजूद था। इस स्टेप को हम वेलकम करते हैं, मगर जनाब स्पीकर ये फर्टिलाइजर कंपनीज को, ये बिजली घरों को और बेसिकली अमीरों को हम सब्सिडाइज करते हैं, वफाकी हुकूमत सब्सिडाइज करते हैं। और अगर आप इसको टैली करते हैं तो सालाना 1500 अरब हमारा एलीट सब्सिडी है इस मुल्क है जनाब स्पीकर। तो ये फर्टिलाइजर सब्सिडी जो सीधा कंपनीज को जाते हैं वो हम बंद कर ले, बाकी पूरा नहीं तो आधा आप बंद कर ले। We can't afford to be a social welfare state for the rich जनाब स्पीकर। आप ये दो काम, वजारतें बंद, सब्सिडीज बंद कर देते हो, तो जो हम अब मुआशी बहरान का मुकाबला करना जा रहे हैं, उम्मीद ये है कि आपके पास फिर वो स्पेस होगा कि वो जो रिलीफ, चाहे हमें या आप या उनको जो वोट मिले, वो रिलीफ का जो मुतालबा पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं, उम्मीद है कि आपके पास उतना गुंजाइश होगा कि आप वो फिर रिलीफ, जैसे आपने किसानों के लिए ऐलान किया, इसी तरीके से अगर हम बिजली में वो ट्रांसलेशन करें, जिस पे शहबाज शरीफ साहब और मैं जब साथ कैबिनेट में थे, वज़ीर आज़म था, तो जैसे हम बात करते थे कि हमें सूबे को ये स्पेस देने चाहिए, सपोर्ट देने चाहिए कि वो सोलर एनर्जी की तरफ जाए। अब इस तमाम हेल्थ की बात हुई, तालीम पे आपने बात की, आपके पास वो फिस्कल स्पेस अगर होगा तो फिर आप सूबाई हुकूमतों को इन जगहों में सपोर्ट कर सकेंगे और हम पाकिस्तान के अवाम को वो रिलीफ दे सकेंगे। तीसरा जो एक मेरा सजेशन होगा वज़ीर आज़म साहब के लिए कि हमने जब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज डिवॉल्व किया तो तमाम सूबे, पहले सूबा सिंध ने बनाया SPR, फिर पंजाब, KP और बलोचिस्तान ने भी अपने प्रोविंशियल रेवेन्यू बोर्ड्स बनाए, और तमाम सूबे के प्रोविंशियल रेवेन्यू बोर्ड्स का जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का कलेक्शन है वो वफाकी हुकूमत का कलेक्शन को डिफीट करते हैं। हम परफॉर्म करते हैं और FPR हर बार फेल हो जाता है। एक और सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है, वो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स अब तक वफाकी हुकूमत की FPR कलेक्ट करता है। मेरा प्रपोजल जो मैंने इनकी हुकूमत में हमाद अजहर साहब को भी फ्लोरिडा हाउस पे कहा था, मगर उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। मैं आपसे ये प्रपोजल, आपको भी ये प्रपोजल दे रहा हूँ जनाब वज़ीर आज़म, कि वो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स अगर आप पूरे तरीके से डिवॉल्व नहीं करते हो तो आप कलेक्शन को, सूबे को कलेक्शन की जिम्मेदारी दें और आप चारों सूबों को टारगेट सेट करें। हम मिल बैठ के भी वो टारगेट सेट करते हैं। And I speak for सूबा सिंध, सूबा बलोचिस्तान, बाकी आप पंजाब और KP अपने फैसले देंगे, मगर अगर आप हमें ये कलेक्शन की जिम्मेदारी दें और हम टारगेट सेट करें, आप उसमें बिल बैठ के कि X आपका टारगेट है रेवेन्यू कलेक्शन का सेल्स टैक्स ऑन गुड्स से, अगर हम वो टारगेट पूरा करते हैं तो आपका काम हो गया। अगर वो टारगेट हम मीट नहीं कर सकते या अगर हम नाकाम होते हैं तो हम अपना सूबाई बजट से वो जो गैप है वो पूरा करके आपको वापस देते हैं।